देखिए, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेकर के हम आज क्लास में बात करें, जो शेक्सपियर का वेल नोन प्ले है। एंड व्हाई आई हैव टेकन मर्चेंट ऑफ वेनिस आफ्टर टेकिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग कि हाउ आर यू गोइंग टू दिस, हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस प्ले, what are the important features, what are the basic characteristics of this play. Already you are familiar, already you have gone when you were in intermediate, yeah, when you were doing graduation or post graduation, somewhere you have gone with this play. लेकिन इस प्ले को जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी तक हम लोगों ने समझा है, तो मुझे लगता है कि एक और डायमेंशन है जिससे इस प्ले को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। एक और पहलू भी है जिसको लेकर के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। So what I want to say, what I want to tell you, कि whenever you study William Shakespeare, you ultimately get the point कि William Shakespeare is famous as a dramatist sonneteer। दो वर्ड उनके साथ यूज किया जाता है कि वो ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर के रूप में फेमस है। बट आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग एंड दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट कि विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर के रूप में तो अनडाउटली फेमस है, लेकिन ड्रामेटिस्ट में भी उनके साथ ये कहा जाता है कि ही वॉज अ वेल नोन ट्रेजिक एज वेल एज कॉमिक ड्रामेटिस्ट। वे जो है ट्रेजिक और कॉमिक ड्रामेटिस्ट रहे, ये भी उनके साथ जोड़ा जाता है। So what I want to say, what I want to tell you कि whenever you go with this point, कि especially he is known as tragic as well as comic dramatist, तो एक और डायमेंशन उनके साथ आता है, या एक और पॉइंट आता है जो उनके ड्रामा से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। द थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट इज व्हाट, दैट इज कि ही हैज रिटन ट्रेजिक एंड कॉमिक ड्रामा या ट्रेजिक एंड कॉमिक प्ले। So in this class, we will go with what? In this class, we will discuss see how the Merchant of Venice is a well-known example of tragic and comic drama. एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमको यहाँ से समझने की कोशिश करना है, या आपको जो समझने की कोशिश करना है कि वाई द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजिक एंड कॉमिक ड्रामा। Second important thing ki when we talk about tragic and comic drama, you will come to know ki that one thing I want to tell you ki when you go with this particular play, tragic and comic drama, then remember that ki the Merchant of Venice undoubtedly, so it's not only a play, but ultimately you will get ki there are some social issues. There are some social issues that are highly significant, which I will take. Second important thing ki why tragedy and comedy. Second thing ki why tragedy and comedy, and what are those social issues that are important, that which we want to highlight. So the important thing is that ki, why I have taken this play, because it's a play which ultimately falls between tragedy and comedy, not chronologically. Remember that जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि यह एक ऐसा प्ले है जो मैं नहीं कहता कि यह ट्रेजिडी और कॉमेडी के बीच में क्रोनोलॉजिकली के हिसाब से फॉल कर रहा। आई एम नॉट टेलिंग यू द पर्टिकुलर डेट, बट आई एम टेलिंग यू कि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ये प्ले है, इस प्ले में यू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी. You find the mingling of tragic and comic action. This is why you will come to know that there is a well-known critic, Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson wrote a critical essay preface to Shakespeare. You can note down. You can note down it. Dr. Samuel Johnson wrote a well-known. He wrote a critical essay, and that essay is what? That essay is preface to Shakespeare. And in that essay, he admires William Shakespeare because
he started to write a new type of play that was what? That was tragedy and comedy. Tragedy comedy. So, what I want to say, what I want to tell you, why these things are highly significant, why these things are highly important. Remember that whenever I go with this play, so this play is highly significant because before coming this play, either the people wrote tragedy or comedy. या तो लोगों ने ट्रेजेडी लिखा या तो लोगों ने कॉमेडी लिखा, लेकिन शेक्सपियर ने एक नया जो है ड्रामा की दुनिया में एक नया एक्सपेरिमेंट किया। और वह जो ड्रामा की दुनिया में नया एक्सपेरिमेंट था, वह एक्सपेरिमेंट कैसा था? दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेजी एंड कॉमेडी। वह ट्रेजी और कॉमेडी का एक्सपेरिमेंट था। अब सवाल उठता है कि ट्रेजी कॉमेडी क्या पहले ड्रामा में नहीं मिलता था? मिलता था, लेकिन या तो ट्रेजेडी भारी पड़ती थी या तो कॉमेडी। जैसे शेक्सपियर की ट्रेजेडी में ट्रेजिक एक्शन ज्यादा चलेगा, कहीं पे हल्का फुल्का कुछ लाइट सीन्स दे दी जाएगी जो कॉमिक होगा। लेकिन ऐसी कॉमेडी में जब आप देखेंगे तो लव है, ब्यूटी है, रोमांस, ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट, बट यू विल नॉट गेट द ट्रेजिक एक्शन की उस तरह से देखा जाए। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि वाई आई हैव चूजन दिस प्ले, वाई आई हैव टेकन दिस प्ले, वाई दिस प्ले इज हाईली सिग्निफिकेंट, एंड व्हाट वी हैव टू डू, what we have to do. So the important thing is that ki when I have taken this play, so my goal is not only to tell you a story, my goal is not only to tell you the particular summary, the particular you can just say ki the क्रक्स ऑफ द प्ले की व्हाट द थीम इट हैज, बल्कि मैं मेरा बताने का ये भी मकसद है कि यह जो प्ले है वो किस कैटेगरी में आएगा, कहाँ पे आपको उसको ले जाके रखना है। बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। कौन सा क्वेश्चन आस्क हुआ है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और रोमांस। So remember that ki the Merchant of Venice is an example of tragicomedy. It's an example of what? It's an example of tragicomedy. अगर जो है ट्रेजिक कॉमेडी ऑप्शन नहीं होगा तब तो हम कॉमेडी में जाएंगे। इफ देर इज अ ऑप्शन ट्रेजिक कॉमेडी, surely and certainly we have to go with the option. And what is that option? That option is tragic comedy. So I have taken to tell you कि why Shakespeare has been admired. ऐसा नहीं है कि as you like it लिखने के लिए शेक्सपियर का एडमिरेशन नहीं हुआ, ट्वेल्थ लाइट लिखने के लिए शेक्सपियर का एडमिरेशन नहीं हुआ, या जो है शेक्सपियर की 4 ग्रेट ग्रांड ट्रेजेडीज, एसी ब्रैडले बड़े क्रिटिक में से शुमार किए जाते हैं जिन्होंने एक किताब लिखा था 1904 में, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। तो उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत ज्यादा। इवन बाद में जो हमारे गाइड थे प्रोफेसर लक्ष्मी राज शर्मा सर, जब वो क्लास में आते थे पढ़ाते थे तो कहते थे कि अगर शेक्सपियर को खुद ये कहा जाए कि आपने जो ड्रामा लिखा द प्ले विच यू हैव रिटन, इफ you if he is going to appear as a student, means either in graduation or post graduation, and if he is going to give any answer related to his own play, so he must have to read एसी ब्रैडले शेक्सपियर ट्रेजेडी। और ये वो कहते थे कि एसी ब्रैडले ने शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे इतना काम किया है कि शेक्सपियर को खुद अपने प्ले को समझने के लिए एसी ब्रैडले को पढ़ना पड़ेगा, राइटर को वो करना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर आई टेक दिस प्ले, तो आप देखेंगे कि कुछ बड़े क्रिटिक्स हैं जिन्होंने उस फील्ड में काम किया। जैसे शेक्सपियर ट्रेजेडी पर मैंने अभी एक नाम लिया, किसका नाम लिया? एसी ब्रैडली का। एसी ब्रैडली ने शेक्सपियर ट्रेजेडी के नाम से किताब लिखा जो 1904 में आई है। शेक्सपियरन कॉमेडी पर एक बड़े क्रिटिक है एलार्डाइस निकोल। एलार्डाइस निकोल, द बुक इज अवेलेबल, द बुक इज हियर। और शेक्सपियरन ट्रेजेडी दोनों किताबें पीछे आपको रैक में नजर आएंगी, बट आई डोंट हैव टाइम कि उसको यहाँ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो यू विल कम टू नो कि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। एक एक फील्ड होता है जिस फील्ड में लोग बात करते हैं। एसी ब्रैडली ने उनकी ट्रेजेडी पर बात किया, एलार्डाइस निकोल ने उनकी कॉमेडी पे बात किया। इसी तरह से मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर पे बात किया, एस टी कॉलरिज ने शेक्सपियर पे बात किया,
और ये सब शेक्सपियर के मरने के, आप देखेंगे बहुत लंबा समय नहीं कि 500-600 साल जा चुका है, 100 साल के अंदर ही, 150 साल के अंदर ये क्रिटिक्स आते हैं और उनपे अच्छी खासी बातें करते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी हैं, जिन्होंने 1755 ईस्वी में इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट अ क्रिटिकल एसे। उन्होंने क्रिटिकल एसे लिखा था और उस क्रिटिकल एसे का नाम था प्रीफेस टू शेक्सपियर। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि उस क्रिटिकल एसे का क्या नाम है, प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एडमायर किया विलियम शेक्सपियर को फॉर राइटिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्ले, मीन्स अ न्यू जानरा, GENRE। और वह जानरा आपका क्या है, ट्रेजी कॉमेडी। तो इतने क्वेश्चंस आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं। शेक्सपियर की ट्रेजिडी पर बड़े क्रिटिक का नाम है AC ब्रैडली, जिन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम ही है शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, जो कब पब्लिश हुई है, 1904 ईस्वी में पब्लिश हुई। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है। दूसरा चीज, शेक्सपियर की कॉमेडी पर एक वेल नोन क्रिटिक है जिनका नाम है एलार्डाइस निकोल। एलार्डाइस निकोल ने शेक्सपियरियन कॉमेडी नाम से किताब लिखा हुआ है। आई एम मिसिंग द डेट ऑफ दिस बुक, डोंट थिंक, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आज की क्लास जो स्पेशली आई हैव टेकन दिस क्लास, दैट इज अबाउट whom, दैट इज अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, a type of play in which you find the mingling of both tragic and comic action, especially taking the character of whom, especially taking the character of Shylock and Antonio। आप वहां पर देखेंगे कैसी चीजें दिखाई गई है, आई विल एक्सप्लेन इट। तो ये जो प्ले है यह ट्रेजिक कॉमेडी कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, और इसको जो तारीफ करने वाले क्रिटिक्स में से बड़े नाम आते हैं, उसमें से एक नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी में पैदा हुए थे। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखा, 1755 में आई है। उन्होंने एक क्रिटिकल एसे लिखा था, उस क्रिटिकल एसे का नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर। यह जो प्ले प्रीफेस, सॉरी, यह जो क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर है, इसमें उन्होंने शेक्सपियर को कई ढंग से तारीफ की हुई है। लेकिन तारीफ का एक मात्र एक और जो बेसिक पॉइंट है, जो आज मैं इस क्लास में लेकर के आपको बात कर रहा हूं, उसका एक और रीजन है। वह कौन सा रीजन है, दैट इज कि ही रोट अ न्यू टाइप ऑफ प्ले, he started to write a new type of drama, that is what tragic comedy। सो इतना तो आपके समझ में आ गया, जो कल हम बात कर रहे थे और आपको मेरी आवाज नहीं जा रही थी, तो नाउ यू आर इन पोजीशन की वाई आई एम हियर, वाई यू आर हियर, व्हाट वी वांट टू डू इन दिस क्लास। इस क्लास में हम क्या करना चाहते हैं। मैंने बताया कि स्टोरी आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जरूर हमारे और आपके बीच में होंगी जो आपको लगेगा कि समथिंग हमारी और आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हो रहा है। वी आर गोइंग टू समथिंग एड इन आर मीन्स मेमोरी, द थिंग विच वी हैव स्टोर्ड रिगार्डिंग दिस प्ले, उसमें कुछ ना कुछ चीजें और जुड़ेंगी। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप इस प्ले को लेते हैं, तो पार्टिकुलर चीज आपके ध्यान में आता है कि जो प्ले है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट सौदागर, वेनिस जगह का, वेनिस के सौदागर। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्ले में केवल जो है वेनिस के सौदागरों की बात, बिजनेस की बात की गई है। बिजनेस अनडाउटली एक बड़ा पॉइंट है, और उस बिजनेस में भी अगर मैं ये कहूं कि डेप्ट, DEBT, डेप्ट, कर्ज, या जो है अगर उसको मैं दूसरा वर्ड यूज करूं कि मनी लेंडर, मनी लेंडर, रुपया उधार देने वाले। तो एक आदमी ऐसा है जो रुपया, क्या कहते हैं कि हैवी इंटरेस्ट पर उधार देते हैं, जिनका नाम शायलाक है। और एक कैरेक्टर ऐसे हैं जो लोगों को हेल्प करने के लिए पैसा उधार देते हैं। तो ड्रामेटिस्ट ने एक
मैंने बताया था कि हर ड्रामा में बाइनरी जरूर खड़ा किया जाएगा। अगर एक अच्छा एक्शन है तो उस अच्छे एक्शन को अपोज करने के लिए कोई ना कोई बुरा एक्शन होगा, तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट होगा। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक ड्रामा की ना स्टोरी आगे बढ़ेगी, ना आपको कोई इंटरेस्ट आएगा। सो व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर यू टेक दिस पार्टिकुलर प्ले, जब भी आप इस प्ले को लेते हैं, या वेन एवर यू गो विद दिस प्ले, वेन एवर यू स्टडी दिस प्ले, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इसमें एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वह बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेप्ट है, मनी लेंडिंग है। मनी लेंडिंग, रुपया उधार देना। लेकिन जो रुपया उधार देने की आइडियोलॉजी है वह दो तरह की। एक आदमी ऐसा जो लोगों की हेल्प के लिए पैसा उधार देते हैं, दूसरा आदमी एक ऐसा है जो कि एक तरह से उन्होंने उसको अपना बिजनेस बना लिया है, और शाइलॉक ने कि वो हैवी इंटरेस्ट पर पैसा उधार देते हैं। तो शाइलॉक ये का जो बिजनेस है, जो चीजें हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर लोग पैसा किससे जाते हैं उधार लेने के लिए कि हमें उधार मिल जाए बगैर इंटरेस्ट के? वो जो है एंटोनियो है। ऐसा क्यों है मैं इस पर भी बात करूंगा, मैं उस पर भी बताना चाहूंगा कि हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जो कोई प्ले होता है, आप ऐसा नहीं कि उसको केवल एक डायमेंशन से स्टडी करना है। You will come to know there are so many dimensions, there are so many things, there are so many means पॉइंट्स और सब्जेक्ट मैटर जिसको लेकर के प्ले की स्टडी की जा सकती है। दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर ज्यूस, दूसरा कैरेक्टर क्रिस्टियन। यू विल कम टू नो कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर सोसाइटी, दे रिप्रेजेंट देयर सोसाइटी, नो नॉट एट ऑल। बट आई वुड लाइक टू से कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, यह दोनों कैरेक्टर जो है एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड आइडियोलॉजी ऑफ ज्यूस। 16वीं शताब्दी का जो इंग्लैंड रहा है, उस इंग्लैंड में शायद शेक्सपियर ये भी बताना चाहते थे कि इन दैट यूरोप, इन दैट इंग्लैंड, वहां पर एक बेसिक प्रॉब्लम थी। दैट वाज द कम्युनल हैट्रेड फीलिंग। कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, अगर मैंने आपको याद होगा ओथेलो लिया था, तो ओथेलो में मैंने एक पॉइंट बताया था कि उसमें रेशियल इशूज था, नस्ल भेद था। वहां जो समस्या है क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस के बीच में है, वहां पे कोई जीव को लेकर के बात नहीं होती है। वह क्रिश्चियंस है, एक क्रिश्चियंस ब्लैक है जो अफ्रीका, मूर है जो अफ्रीका से है, दूसरा जो है आपका क्या कहते हैं कि यूरोप के ही वाइट वाइट क्रिश्चियन है। उनके बीच में नस्ली भेद, रेशियल प्रॉब्लम को लेकर दिखाई गई है। लेकिन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में रेशियल इशू नहीं है, यहाँ पे कम्युनल प्रॉब्लम है, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन एवर यू गो विद दिस पार्टिकुलर पॉइंट, जब भी आप इस पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर के बात करते हैं, जब भी आप इस पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर के देखते हैं, तो आपको ये समझना है कि शाइलॉक और एंटोनियो समाज की दो आवाज हैं। वे समाज के दो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समाज की, मैंने वर्ड यूज किया, समाज की दो आवाज है, और समाज के दो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं नहीं कहा कि दो सोसाइटी को या एक अपने सेक्स उसको, बल्कि दो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ हद तक, ये देखा जा सकता है। और बिकॉज जो शेक्सपियर हैं वो खुद क्रिश्चियन थे, शायद उन्होंने इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम रही होगी, और वो खुद क्रिश्चियन रहे हैं। शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के माइंड में क्रिश्चियन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, खासकर व्हेन ही प्रेजेंट्स एंटोनियो। जब वो एंटोनियो को प्रेजेंट करते हैं, बैसानियों को प्रेजेंट करते हैं, पोर्सिया को प्रेजेंट करते हैं, इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि एक सॉफ्ट कॉर्नर शायद रहा है। दूसरा एक हिस्सा आप ये देखेंगे कि शाइलॉक की बेटी जेसिका जो है जब इलोप कर जाती है, किसके साथ इलोप कर जाती है? लॉरेंजो, तो वो भी क्रिश्चियन है। यह जो इलोपिंग का केमिस्ट्री है, यह इलोपिंग का केमिस्ट्री यू विल नॉट फाइंड कि दैट एनी क्रिश्चियन गर्ल इज गोइंग टू इलोप विद एनी ज्यूस बॉय। यू विल कम टू नो।
तो यह एक इलोपिंग, जबकि दैट टाइम इलोपिंग वाज नॉट अ गुड थिंग, उस समय इलोपिंग अच्छा चीज नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस इलोपमेंट को दिखाया। यह भी एक पॉइंट है जो कि चीजें देखने के लायक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है क्रिश्चियंस में मर्सी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ज्यू, जो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जहां पे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो जीव है वो ग्रीडी है, जो जीव है वो मनी लेंडर है, जो जीव है ही ही डज नॉट गिव वैल्यू, ही डज नॉट गिव गिव एनी इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जो कि अभी प्ले की स्टोरी बताते समय आएगा कि ही डज नॉट गिव एनी वैल्यूज, एनी इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यूज। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप ये चीज देखते हैं कि क्रिश्चियन ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और सॉरी ज्यूस ज्यूस ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ज्यूस की तुलना में क्रिश्चियन ह्यूमन वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा ऐसा एक एक हद तक ये देखा जा सकता है, यह भी एक नजरिया हो सकता है प्ले को समझने का। क्यों? कारण है कि जहां जहां पर भी कुछ ऐसी सीन्स होती है, जहां पर आप ये देखेंगे कि ये चीज दिखाया गया कि जैसे शाइलाक का जन्म धरती पर, या शाइलाक का पूरा लाइफ जो धरती पर गुजरता है, वह केवल मनी के लिए ही गुजरता है, और वह मनी के लिए सारे रिश्तों को तोड़ देता है, ऐसा शायद दिखाने की कोशिश की गई है। जब आप मर्सी सॉनेट पढ़ेंगे, जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिस्सा है, जो कि इसके ट्रायल सीन में घटित होता, ऑलरेडी यू हैव गॉन, तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा कि मर्सी के बारे में, जब पोर्सिया जो है डिस्गाइज फॉर्म में आती है एक एडवोकेट बन करके, और प्ली करती है, एक तरह से याचना करती है शाइलाक से कि शो मर्सी। उस समय जो है मर्सी को लेकर के जो इंटरप्रिटेशन दिया गया, जो मर्सी को लेकर के उसमें वो दिया गया, वो सारी बातें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में रही है। और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट हमें पता है कि ये बाइबल का हिस्सा है, वहां पर भी जो है ये चीज देखने को मिलता है कि शेक्सपियर ने जो मर्सी का कॉन्सेप्ट लिया, मर्सी की जो आइडियोलॉजी ली है, वह बाइबल से लिया है, जीव के किसी रिलीजियस बुक से नहीं लिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जीव के जो रिलीजियस बुक्स हैं, क्या उसमें क्या नाम है, मर्सी का कॉन्सेप्ट नहीं है? जीव का जो है बुक है तौरात, तौरात एक इम्पोर्टेंट उनका जो है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिवाइन बुक, जो इम्पोर्टेंस वेदा का जो इम्पोर्टेंस, क्या कहते हैं कि बाइबल का जो इम्पोर्टेंस जो है द गीता का है, द सेम थिंग यू विल गेट कि वहां पर भी उनका रहा है। तो इस तरह की जो चीजें, या अगर आप पैराडाइज लास्ट आप पढ़ेंगे, तो पैराडाइज लास्ट में एक जिक्र आता है, अभी एक दो दिन बाद उसका नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा। पैराडाइज लास्ट में एक कैरेक्टर है मोजेस, जिसको जिसको प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। मोजेस क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में उनका जिक्र है। और जो मोजेस है, ये कहा जाता है कि ये जो पैगंबर आए थे, यह पैगंबर ज्यूस कम्युनिटी में आए थे। तो ऐसा नहीं कि वहां पे पैगंबर नहीं आए, वहां पे आसमानी किताबें नहीं आई, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी नहीं रहा, वहां पर भी रहा है। लेकिन मैंने बताया कि बीइंग अ क्रिश्चियन, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिश्चियन, तो सर्टेनली जो आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा, खासकर जब आप 16वीं शताब्दी में हैं, तो अपने लोगों को फ्रंट में लाने की बात रखी जाएगी, या लोग करते हैं। तो वो जो है उसमें एक बात आती है ना कि प्रीजुडिस होकर के कि ये ऐसे हैं, तो ये चीजें देखने को मिलता है। तो जितने डायमेंशन पर हमने बात किया, मैं अगेन फिर आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा डेप्ट, कर्ज लेना, एक इसमें एक कर्ज लेना या मनी लेंडिंग, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें आपको पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द चलेगी। लेकिन
उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो ये केवल पॉइंट है जो ले करके जैसे मेरे दिमाग में अगर आया कि आई हैव टू राइट एनी स्टोरी, देन आई जस्ट थॉट कि आई हैव टू टेक द सिचुएशन ऑफ especially COVID-19 in the perspective of COVID-19. I have to write a story, but behind the COVID-19, या कोविड 19 तो एक प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया झेल रही, लेकिन इसके पीछे मुझे क्या बताना है, आई हैव टू टेल द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। मेरे लिए कोविड 19 नहीं, कोविड 19 एक मेरे लिए एक इवेंट है, लेकिन उसके पीछे मुझे माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर के बात करनी। द सेम थिंग यू विल फाइंड कि डेब्ट और मनी लेंडिंग अनडाउटली या हैबिट शाइलाक की हो सकती है, या हैबिट शाइलाक की हो सकती है, लेकिन जब आप पूरे प्ले को पढ़ेंगे तो ये इस हैबिट के पीछे जो चीजें प्रेजेंट करना था, शायद वह जो है क्या था, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग। यह भी एक मकसद रहा होगा कि उस समय के क्रिश्चियन की, उस समय के जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी सोच जो है ज्यूस के प्रति क्या है, एंड हाउ आर दे टेकिंग ज्यूस, वे ज्यूस को कैसे ले रहे हैं, इन व्हाट वे दे आर बिहेविंग, या ज्यूस जो है उनके समाज में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। मर्चेंट है, दोनों मर्चेंट है, शाइलॉक भी मर्चेंट है, एंटोनियो भी मर्चेंट है। एंटोनियो जो मर्चेंट है क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, शाइलॉक जो मर्चेंट है वो जो है ज्यूस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन एंटोनियो को लिबरल दिखाया गया, एंटोनियो को ये दिखाया गया कि एंटोनियो गिव्स वैल्यू टू वर्ड, एंटोनियो गिव्स वैल्यू टू ह्यूमन रिलेशनशिप। एक पॉइंट ध्यान में रखना कि एंटोनियो मानव संबंधों को, मानव संवेदनाओं को ज्यादा महत्व देता है बशर्ते पैसे के। एंटोनियो इज नॉट बिहाइंड मनी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटोनियोज लाइफ इज नॉट टू अर्न मोर एंड मोर मनी। और वहीं पर इनको कैसे दिखाया गया, यू विल कम टू नो कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस आदमी को ऐसा लगता है इसके जीवन का पूरा उद्देश्य मनी ही मनी है। लेकिन मैं दो घटना ऐसी आपको बताऊंगा जहां पर एक बार हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या ऐसा था। खुद शेक्सपियर ने, एक घटना तब की आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब जो है शाइलाक की जो बेटी है, वह जो है शाइलाक का शाइलाक की वाइफ ने, मतलब शाइलाक की वाइफ ने, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उसने जो है क्या किया हुआ था, एक रिंग दिया है अपनी बेटी को, और उसकी बेटी जो है क्या करती है, उस रिंग को बेच देती है। तब शाइलाक को बहुत दुख होता है, और शाइलाक याद करता है कि शादी से पहले कैसे वह रिंग जो है मेरी पत्नी ने दिया हुआ था, या वह एक निशानी थी जो मेरी पत्नी की थी और जो घर पर थी, लेकिन मेरी बेटी ने पैसे के लिए उस रिंग को बेच दिया। तो वहां पर जब शाइलाक उस चीज को याद करता है तो शाइलाक बहुत इमोशनल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ शाइलाक रिंग को महत्व दे रहा है, यहाँ शाइलाक रिंग के द्वारा बेचे गए जो पैसा आया उसको महत्व दे रहा है, या शाइलाक इज गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप, मीन्स his wife, that particular ring was what, it was a gift given by his lovable wife who is no more in this world. So if the ring is ultimately in his hand, so with the through the ring he always recalls those lovely memories, ultimately which has gone. तो एक ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए, जहां पर कि अगर उसको ह्यूमन रिलेशन को महत्व न देना होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शाइलाक बहुत सारी चीजें घर की बेच दिया, अगर ऐसे बहुत सारे गिफ्ट रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें रही होंगी। या एक और चीज आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें घटित होती हैं, जहां पर जब जब लारेंजो जब जब जेसिका लारेंजो के साथ इलोप करती है, तो इलोप करने के बाद आप देखेंगे दो चीजें होती हैं। जब वह इलोप करती है तो वह जो है शाइलाक के पैसे को भी लेकर के जाती है और खुद भी चली जाती है।
यहाँ पे शायलाक ने दो बातें कही हैं। एक तो कि मेरी जो पूरी जिंदगी भर की कमाई थी वह मेरी बेटी लेके चली गई। दूसरा चीज, मेरी बेटी चली गई। दो दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अनडाउटली यहाँ पैसे की बात आती है, लेकिन शायलाक का जो मैडनेस है, केवल अगर कोई ये कहे कि शायलाक इसलिए लास्ट में पागल हो जाता है कि उसकी बेटी उसका पैसा लेके चली गई, यही एक रीजन था, तो मैं नहीं कहता, यह एक शौक है। और और इसमें भी देखिए, इसमें बुरा चीज वो नहीं। अगर कोई आदमी जीवन भर किसी चीज को इकट्ठा किया है और अचानक वो चीज जो है बिल्कुल वहां से चली जाए, या कोई आदमी उसको छीन ले, तो ऐसा कौन है इस धरती पर जिसको गम नहीं होगा। शायलाक को पैसे से प्यार था, शायलाक को पैसे से मोहब्बत थी, लेकिन इस चीज को डिनाई कर देना कि शायलाक ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि यह उसके कैरेक्टर को केवल एक पहलू को ही देखना होगा। तो बीइंग अ क्रिटिक, या शमीम अगर आपके साथ लाइव है तो इसलिए लाइव नहीं है कि ये बता दें कि उसके कैरेक्टर शाइलाक है, उसका कैरेक्टर एंटोनियो है, उसका कैरेक्टर पोर्सिया है, या उसका कैरेक्टर जेसिका है, लॉरेंजो है, उसमें जो है ये सीन है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। मैं अगर आपके साथ लाइव हूं तो एक डिस्कस करने के लिए लाइव हूं कि कुछ ऐसी नई चीजें आपको इस प्ले में मिलेंगी। अदरवाइज ऑलरेडी यू हैव गॉट व्हाट इज माई नीड क्या। तो एक पहलू हमें ये भी देखना, जिससे हम एकदम सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि शायलाक का मैडनेस होना इसलिए भी होना है कि अल्टीमेटली जो उन्होंने जीवन में इकट्ठा किया था, अनडाउटली वह चीज उनकी बेटी लेकर के चली गई, लेकिन बेटी का जाना भी यह उसके लिए एक बड़ा गम लाता उसकी जिंदगी में, और वाइफ ऑलरेडी नहीं है। तो और ये सब जो चीजें हुई हैं, जब उसको ये पता चलता है कि वह जो भाग करके गई हुई है किसके साथ, एक क्रिस्टियन के साथ, और जो उसके यहाँ नौकर था, और अब जो सेटल हो चुका है वहां पर, तो उसको ये डर लगता है कि जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर मैं वर्ड करूं दुश्मन, या जो ये मैं कहूं कि उसका जो एक राइवलरी जो दिखाई गई है, वो चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी कि अ, जो एंटोनियो है वो भी एंटोनियो के यहाँ जाती है, या उस पूरे ग्रुप में शामिल हो जाती है जिसका हिस्सा पोर्सिया है, बैसानियो है, एंटोनियो है, उसी का हिस्सा उसका बेटी बन जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें रही हैं जहाँ पे आई एम हियर अगेन। गिव मी 1 मिनट, आई एम हियर अगेन। सो कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ये कोई एक आदमी। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज एस्पेक्ट्स, मैं नहीं कहता कि एंटोनियो अच्छे आदमी नहीं है। एंटोनियो शाइलाक से 100 गुना बेहतर रहे हैं। एंटोनियो शाइलाक से 100 गुना बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके भी फेवर में नहीं हूं कि शाइलाक वाज अ डेविल और सेटन, कि शाइलाक को हम डेविल या सेटन की कैटेगरी में ले जाकर के रखें या उसको विलेन बना दें। क्योंकि इट्स इट्स अ वेरी इजी टास्क, यह बहुत आसान चीज होता है कि राइटर या रिपोर्टर, चाहे वह मीडिया हमारी हो, चाहे हमारे राइटर हो, अगर वो प्रिजुडिस्ड है तो किसी भी अच्छे इंसान को वो डेविल की कैटेगरी में ला खड़ा कर देंगे, एज यू आर सीइंग इन प्रेजेंट टाइम, स्पेशली इंडियन मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, जो आप देख रहे हैं। किसी भी समय किसी को ये कहा जा सकता है कि यू आर अ डेविल, यू आर अ विलेन, यू डोंट नीड टू गो टू कोर्ट, पहले आपका ट्रायल मैं करूंगा, मतलब मीडिया वाले करेंगे, उसके बाद जो है फिर बाद में जब जज का फैसला आएगा वो अपनी जगह है, पहले आपको ट्रायल वहीं पे देना पड़ेगा। तो एक माहौल ऐसा कुछ मुझे लगता है कि उस समय रहा था, जो कि वहां पे हमें देखने को मिलता है।
दूसरा चीज, आपको एक डायमेंशन जो बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार ये कहता हूं कि कम्युनल हैट्रेड फीलिंग में, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग में आखिर क्या रीजन है कि यू विल कम टू नो कि हो सकता है कि बहुत सारा बुरा काम एंटोनियो शाइलाक कर रहे हों, और शाइलाक ने किया भी हो सकता है शाइलाक ने गलत वर्ड यूज किया हो। लेकिन आप मुझे एक एक चीज ये बताइए कि जब एंटोनियो जो है पब्लिक प्लेस पर उसके ऊपर स्पिट करते हैं, थूकते हैं, तो क्या शाइलाक ने उनको स्लैप किया? क्या शाइलाक ने उनको थप्पड़ मारा? क्या शाइलाक ने बदले में उनके ऊपर स्पिट कर दिया? क्या शाइलाक ने उस एक्सटेंट तक उनको एब्यूज किया? अगर पब्लिक प्लेस पर आपको ईदर यू और आई आर गोइंग टू बी इंसल्टेड, तो विल यू बी मम? वुड यू लाइक टू बी साइलेंट? यू विल आल्सो रिएक्ट। आपका रिएक्शन हो सकता है कि थोड़ा हो या ज्यादा हो, रिएक्शन होगा। तो यह भी इंडिकेट करता है, शायद शायद यह इंडिकेट करता है कि जो भी मेजॉरिटी में होता है, जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होती है, वह कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में होती है, तो जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, वह किसी न किसी रूप में क्या की जाती है, टू सम एक्सटेंट उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो उस वहां पे अ, आपको इंसल्ट किया गया, एक्सप्लाइट किया गया। लेकिन एक फियर हमेशा रहता है कि पार्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, मैं माइनॉरिटी में, इसलिए मुझे रिएक्ट नहीं करना। अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो शायद और बुरा व्यवहार हो सकता है, शायद। तो मेरा अपना यहाँ पर ये जरूर सोचना है कि शायद जो है शाइलाक या जो जीव हैं वो माइनॉरिटी में रहे यूरोप के 16th सेंचुरी का जो इंग्लैंड रहा। और जब वो माइनॉरिटी में थे तो इतना रिएक्शन जिस तरह का आना चाहिए था, उस तरह का रिएक्शन मैं नहीं देख पाता। हाँ, लेकिन एक चीज आपको जरूर मैं कहना चाहूंगा कि शाइलाक रिएक्शन की आग में जलता रहता है। कंटिन्यूअसली यू विल फाइंड द फ्लेम ऑफ व्हाट, द फ्लेम दैट आई हैव टू टेक रिवेंज, दिस पार्टिकुलर फ्लेम यू विल फाइंड। और यह जो फ्लेम है, यह हाईली इन्फ्लेमेबल में बदल जाता है when he gets opportunity, when he gets opportunity कि एंटोनियो इज नॉट इन पोजीशन टू रिटर्न मनी, पैसा वापस नहीं कर पाते, तो ही गेट्स अपॉर्चुनिटी और कहता वो दैट्स गुड, यू हैव इंसल्टेड मी, यू हैव abused मी, यू spit on me, means on a particular occasion at public place, and now it's my time, now it's my time। और जब ये चीज आता है कि सब कुछ उसके फेवर में है, सब कुछ उसकी सारी चीजों में, कि नाउ इट्स माय टाइम, तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर एक चीज शायद शेक्सपियर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पोर्सिया जब उससे बार बार कहती है कि आप मर्सी दिखाइए, आप मर्सी दिखाइए, तो शाइलाक रिजिड है, शाइलाक मर्सी नहीं दिखाते हैं। तो शायद जो है शेक्सपियर यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर जो है जरूर से जरूर क्या करते हैं कि सिचुएशन को बदल देते हैं। और ये कहा गया कि मर्सी इज व्हाट, इट्स अ नेचुरल एट्रीब्यूट। अगर आपको याद होगा वो सॉनेट वहां पे आपने पढ़ा होगा, इट्स द गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स नेचुरल एट्रीब्यूट। और जब कहा जाता है इट्स गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स नेचुरल एट्रीब्यूट, और मर्सी जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं दिखाई जा सकती है। और यह दया का भाव दिखाने का मतलब यह ईश्वर का टैलेंट, यह ईश्वर का एट्रीब्यूट है। और जब यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, तो वहां पर भी शेक्सपियर ने ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो है ईश्वर सारी जो बाजी जो कि किसके हाथ में है, शाइलॉक के हाथ में, कैसे पलट देते हैं और वह एंटोनियो के हाथ में आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि ईश्वर शायद यह चाहते थे कि शाइलाक जो है दया दिखाए और वह ग्रेट बन जाए। एक अपॉर्चुनिटी उसको दी गई कि अगर आप दया दिखाएंगे तो जो एंटोनियो का कैरेक्टर इतना इतना ऊपर उठाया गया, वहां से लेकर के एंटोनियो बगैर जो है उसको क्या कहते हैं कि पैसा उधार तो देता है लोगों को, लेकिन ही गिव्स वैल्यू टू ह्यूमन रिलेशनशिप, बैसानियों के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है।
वो जो ट्रायल सीन है, वह ट्रायल सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो मौका दिया गया, ये शाइलाक को दिखाने का एक मौका था कि अगर मैं इनको माफ कर दूंगा तो यह क्रिश्चियन कम्युनिटी ये समझ सकती है कि जो ज्यूस हैं उनके यहाँ भी मर्सी है। और जब ये मौके को नहीं देते हैं तो यह एक पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, यह पूरी ज्यूस कम्युनिटी पर दाग लग जाता है कि ज्यूस के लोग जो है उतना ज्यादा जो है काइंड हार्टेड नहीं है, उतना ज्यादा वे जिनरस नहीं है, उतना ज्यादा उनके अंदर कंपेशन नहीं है, पिटी नहीं है, जितना ज्यादा क्रिश्चियन के अंदर है। क्रिश्चियंस आर रिक्वेस्टिंग टू ज्यूज शो मर्सी, बट शाइलाक लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। शाइलाक इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू से कि अनडाउटली शाइलाक ने इस अपॉर्चुनिटी को खोया, लेकिन शाइलाक में क्या है, एक भावना है। वह भावना कौन सी थी? वह भावना है कि आई हैव टू टेक रिवेंज बिकॉज दिस मैन इंसल्टेड मी। दिस मैन अल्टीमेटली एक तरह से मुझे क्या किया हुआ था, वो किया था। तो इस पार्टिकुलर चीज में वह जलता रहता है। और मैं यहां पर फिर अगेन आई वुड लाइक टू कोट फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज में उन्होंने कहा कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। बदला जंगली न्याय के समान। अगर आप बदले की आग में जल रहे हैं तो यह जो न्याय होता है बदले की आग का, यह न्याय जंगलों में ही पाया जाता है, जहां पर जो शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर जो है क्या करता है, रूल करता है। वहां पे कोई सोशल जस्टिस नहीं है, कोई कोर्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं है। यू कांट होप एट ऑल की दैट यू विल गेट जस्टिस। सो एक डायमेंशन प्ले का ये भी है कि इस ट्रायल सीन के माध्यम से परहैप्स पूरी कम्युनिटी पर यह एक तरह का लेबल लगा दिया जाता है कि वे जो है उतना ज्यादा उनमें मर्सी नहीं है जितना कि क्रिश्चियंस में। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि आप इन सारी चीजों को अगर इस चश्मे से देखेंगे तो इस चश्मे से देखने के अलावा एक रीजन और भी हमारे सामने आता है, जहां पर हमें इसको ये देखना चाहिए कि पूरे के पूरे प्ले में अनडाउटली इस तरह की चीजें रही हैं, लेकिन पूरे प्ले में तीन कैरेक्टर आपको अ, मुझे लगता है पैरेलल रोल में नजर आएंगे। शाइलाक भी नजर आएंगे, एंटोनियो भी नजर आएंगे, और पोर्सिया जो एक फीमेल कैरेक्टर है, और भी फीमेल कैरेक्टर्स वहां पर है लेकिन पोर्सिया वो भी रही है। उन सारे लोगों में अगर आप ये देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पोर्सिया के पास पैसा नहीं है। पोर्सिया के पास पैसा है, तमाम चीजें हैं। और ट्रायल सीन में पोर्सिया और शाइलाक ये कहते हैं कि तुम, सॉरी, पोर्सिया और एंटोनियो या बैसानियो ये कहते हैं कि तुम्हें जितना पैसा लेना हो तुम पैसा ले लो, लेकिन किसको माफ कर दो, दया दिखाओ। अब फिर मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर जो है शाइलाक को पैसे से मोहब्बत होती तो क्या जो है वो ये ना कहता कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाओ जो है क्या करूं कि जितना पैसा चाहता हूं इससे ले लूं। क्या जरूरत है कि इससे जो है क्या करूंगा कि 1 पाउंड फ्लैश की मांगने की। तो जो ये बार बार कहा गया कि वो मनी लेंडर है, इसमें कोई गलत नहीं कि ही इज अ मनी लेंडर। जो ये कहा गया कि वो ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये भी जो है मैं मान सकता हूँ टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं नहीं कह सकता नहीं देते। अगर नहीं देते तो जब उसकी वो निशानी बेच दी जाती उसकी बेटी के द्वारा, तो कैसे वो अपनी बीबी को याद करता है, उस पास्ट डेज को याद करता है। जब उसके ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि उस वो तो केवल जिंदा है बिजनेस के लिए, तो हमें ये पता चलता है नहीं, वो अपनी बेटी के लिए भी जिंदा था। और बेटी के जाने के बाद ही वह मरता है। मरने का मतलब यहाँ पर नहीं, उसकी सेंसेस, इमोशंस, फीलिंग्स वो मर जाती है। और जिस समाज में आप रह रहे हैं, अगर वह समाज आपको इंसल्ट करता है, एब्यूज करता है, और आपके ऊपर स्पॉट करता है, तो यू विल ट्राई कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले रिवेंज का। तो रिवेंज 16th सेंचुरी से रिवेंज आप कहीं पर भी देखेंगे, शेक्सपियर के हर प्ले में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू विल गेट रिवेंज वहां पे। और जब वह रिवेंज को लेकर के बात करता है, जब वहां करता है, तो वहां पे उसको पैसे का बात कही जाती है, पैसा दीजिए, लेकिन वह पैसे को नहीं लेता, क्योंकि उस समय वो सारा पैसा के प्रति उसका प्यार सब कुछ वह भूल चुका है। बल्कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिस पार्टिकुलर मैन एब्यूज्ड मी। और वह सोचता है कि अगर मैं आज इससे बदला ले लिया तो यह नसीहत पूरी उस कौम के लिए नसीहत हो, पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए।
शायद ऐसे माइंड में चल रहा होगा। और यह जो विजय मेरी होगी, शायलाक की विजय नहीं होगी, बल्कि यह जीउस कम्युनिटी की विजय होगी, क्योंकि उसके पीछे और माइंड है। आपको ये ध्यान में रखना है कि शायलाक जो बदले की आग में चल रहा है, ऐसा नहीं कि इट्स ओनली द गेम ऑफ शायलाक, इट्स ओनली द प्लान ऑफ शायलाक, बल्कि शायलाक के पीछे एक सोच है, एक पूरी कम्युनिटी है। और आज भी यह गेम देखने को मिलता है, किसी एक को आगे करके, किसी एक को प्रतीक बना करके कम्युनिटी पूरा गेम खिलवाती है, वो कहीं की भी हो। और यही पार्टिकुलर चीज वहां पे देखने को मिल रही है। तो शायलाक का हारना, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि पूरी कम्युनिटी हार गई होगी, क्योंकि ज्यूस आज बहुत शक्तिशाली है। और यू कैन जस्ट सी इजराइल, और पूरा का पूरा सारा चीजें, और जितना ज्यूस को सताया गया, बहुत सताया गया, खास करके जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है हिटलर और मुसोलिनी ने बहुत ज्यादा जो है वो किया हुआ था, कम्युनल फीलिंग्स और तमाम चीजें। लेकिन उनकी, दे आर इन पार। अमेरिका का पूरा व्यवसाय उनके हाथों में है, अमेरिका की पूरे इलेक्शन में उनका रोल है। तो मैं नहीं कहता कि दे हैव बीन सप्रेस्ड, दे हैव बीन एलिमिनेटेड, दे आर इन सोसाइटी, दे आर हियर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर ये सोच रही कि शायलाक अगर जीत जाएगा तो पूरी कम्युनिटी की जीत होगी, एंटोनियो हार जाएंगे तो पूरी कम्युनिटी की हार होगी। कम्युनिटी कम्युनिटी कोई एक 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 पर्सन नहीं है, कम्युनिटी कोई एक पर्सन नहीं है। कम्युनिटी जो है, यह एक पार्टिकुलर, आप कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी हो सकता है, कम्युनिटी एक पार्टिकुलर कल्चर हो सकता है, कम्युनिटी एक सिविलाइजेशन हो सकती है, वह एक कारवां है। एंड दैट विल गो ऑन, दैट विल प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड, दैट विल गो डे बाय डे। हर कम्युनिटी का प्रेजेंस रहेगा, अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वह चलती है। तो इन सारे डायमेंशंस को लेकर के, इन सारे पहलुओं को लेकर के आपको जो है इस प्ले को ध्यान में रखना है। बाकी स्टोरीज आपको और पता है, लेकिन मैं एक एपिसोड पर और बात करूंगा। वह एपिसोड ये है कि एक चीज ये कहा जाता है कि जो बैसानियों का जो रिलेशनशिप है एंटोनियो के साथ, वह पार्टिकुलर रिलेशनशिप आप देखेंगे कि वह क्या है। उस रिलेशनशिप में फादर फिगर रिलेशनशिप, फादर फिगर, जिसको एक वर्ड यूज किया जाता है कि गॉड फादर। आप ये देखेंगे कि ये कहा जाता है कि जो एंटोनियो है वह गॉड फादर है। किसके लिए गॉड फादर है? बैसानियों के लिए। गॉड फादर कौन होता है? इसके पहले मुझे याद है, मैंने जब ये बात की थी तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि हु इज गॉड फादर। गॉड फादर वह है जिसके ऊपर जो मतलब एक, आप जैसे मैं शमीम हूं, मैं अगर कहीं पे जाऊं, मेरी वहां कोई पहचान नहीं है, और मेरे अपने विकास में, मेरे अपनी डेवलपमेंट में एक बड़े आदमी का हाथ हो, जो पैसे से, पैसे के साथ साथ जो है एक एज अ पॉलिटिशियन, अगर उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है, और उसकी सिफारिश पर अगर मेरी उन्नति होती है, इफ यू फाइंड, अगर उसकी सिफारिश पर या उसका बैकअप मेरे साथ है, तो वह हाथ जो है या वह आदमी मेरे लिए क्या है? गॉड फादर। जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क यू ओनली वन थिंग कि व्हाट द रोल ऑफ बैसानियो डू यू फाइंड? बैसानियों का रोल क्या है? आई, एज फार एज आई थिंक कि बैसानियों का जो रोल है पोर्सिया के आगे तो कुछ नहीं है, एंटोनियो के आगे भी कुछ नहीं है। अगर मैं देखूं कि बैसानियो क्या है, बैसानियो और एंटोनियो में उम्र का भी इतना फर्क है कि अगर मैं कहूँ दोनों दोस्त हैं, तो दोस्ती के लायक भी उम्र के हिसाब से नहीं है, दोस्ती के लायक भी उम्र के हिसाब से नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, वह चीज, ये चीज नजर आता है कि जो बैसानियो है और जो जो है एंटोनियो है, उन सब में हो सकता है कि कम्युनिटी को लेकर के एक फीलिंग जरूर रही हो कि फला आदमी मेरी कम्युनिटी का है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक चीज ये हो सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि कोई और जो है, कोई ऐसी ऐसा आदमी उसकी उनकी लाइफ में नहीं है। किसकी लाइफ में? एंटोनियो की लाइफ में। उनका अपना कोई ऐसा परिवार नहीं है, या उनके अपने कोई ऐसा वो नहीं है
तो हर आदमी जो इस तरह के होते हैं, वे जो लिबरल होते हैं या जिनके अंदर काइंडनेस होता है, वे कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं। ये तो मेरा अपना नजरिया है, जिस नजरिए से मैं इस रिलेशन को देख रहा हूं। खासकर मेरे माइंड में जो बात आ रही है वो कम्युनिटी फीलिंग को लेकर के बात आ रही है। कारण है कि इवन इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की मेंटलिटी ऑफ्टन आपको देखने को मिल जाएगा। वो मेरी कास्ट का है, कम्युनिटी तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी चीजें, मेरी कास्ट का है। जहां पे आप नौकरी करते रहते हैं वहां पर भी ये बात होती है कि आप किस कास्ट के हैं। तो जब अगर कास्ट का है तो कुछ ज्यादा ही सिंपैथी, कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री बैठ जाती है। और मतलब क्षेत्रवाद, भाषावाद, अगर पता चलिए आप महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, कोई यूपी का है, तो अगर यूपी का तो वहां क्षेत्रवाद, यू विल कम टू नो। ऐसे ही मुझे लगता है कि उसके हेल्प का एक रीजन ये भी था, कम्युनिटी फीलिंग्स जो है। दूसरा रीजन उनका खुद का नेचर, लिबरल नेचर, एंटोनियो का लिबरल नेचर। तीसरा चीज है कि अनडाउटली एंटोनियो के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और एंटोनियो के पास कोई वहां पे वारिस ऐसा नहीं है, या मैं नहीं कह सकता कि और कुछ है। तो इस वजह से जिस हिसाब से बैसानियों उनके साथ रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका चीजें हैं, वह जो है उनको एक उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं। यू विल कम टू नो कि वह जो वह एक गॉड फादर का रोल वहां पे प्ले करते हैं, गॉड फादर। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, एक थियरी आई है, उस थियरी का नाम है क्वियर थियरी। क्वियर थियरी लगभग 1990 के बाद जाकर के शुरू होती है, जिसमें जो है एलजीबीटी क्यू पर बात होती है। लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, ऑल दीज थिंग्स। आई डोंट, मुझे याद है कि उस दिन जब मैं बात कर रहा था तो उस दिन शायद भूपेंद्र भाई या देवेश अवस्थी भाई ने, किसी ने कहा था कि सर इस पर मैं कहूंगा, बात करूंगा। तो मैंने कहा था कि हाँ, किसी क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कितना वो सही है, कितना गलत है। तो एलजीबीटी क्यू जो है यह एक मूवमेंट है, रिसर्च का नया फील्ड है। और उस रिसर्च के नए फील्ड में, जब देखिए प्ले कब लिखा गया, 16वीं शताब्दी से पहले, 1596 में आप देखेंगे कि मतलब 16वीं शताब्दी चल रही, 16वीं शताब्दी क्लोज नहीं हुई है, इन द 16th सेंचुरी प्ले लिखा गया। लेकिन उस प्ले का इंटरप्रिटेशन जो है इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में एक नई थियरी आती है 1990 में, 1990 में, और खासकर 21वीं शताब्दी में ज्यादा फ्लारिश हो रही है। अब उस प्ले को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, यू विल कम टू नो कि ये कहा जाता है कि जो क्वियर थियरी, एलजीबीटीक्यू है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये चार। तो इसमें जो है ये कहा गया कि देयर वाज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बैसानियो और किसके बीच में, एंटोनियो के बीच में। शायद, शायद ऐसा उस स्लाइड से, क्योंकि लोग, द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड कि आखिर एंटोनियो ने अपनी जिंदगी दांव पर क्यों बैसानियों के लिए लगा, इतना इतना वाइस वाइस सच अ रिलेशनशिप। लोग एक दूसरे के प्रति अपनी जिंदगी दांव पे कब लगाते हैं। तो एक पॉइंट इसको भी लिया गया, कितना सही है कितना गलत है दैट इज अनदर थिंग, बट पार्टिकुलर रिलेशनशिप। लेकिन एक और चीजें आई है कि जो लेस्बियन है या जो गे है, केवल इसका मतलब ये नहीं है कि वह लेस्बियन या गे, केवल इस आधार पे उसको कहा जा सकता है कि वह जो है उसका उसके से फिजिकल रिलेशनशिप है। नो, नॉट एट ऑल। यही एक वो नहीं है। अगर कोई मैन किसी दूसरे मैन के लिए या उसके राइट्स को लेकर के बात करता है, उसके साथ खड़ा रहता है, तो ये भी रिलेशनशिप। तो केवल इतना ही नहीं कि केवल फिजिकल रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट फिजिकल रिलेशनशिप वो एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन इट इज आल्सो अ पॉइंट इफ अ मैन सपोर्ट्स एंड अदर मैन, इफ अ वुमन सपोर्ट्स एंड अदर वुमेन रिगार्डिंग देयर राइट्स, हर राइट्स, या उस राइट्स को लेकर के, उनकी चॉइस को लेकर के, उनकी उन सारी चीजों को लेकर के, इस तरह की चीजें, इफ सच थिंग आकर्स इन सोसाइटी, यू विल कम टू नो कि हाँ ये भी चीजें रही है। सो रिमेंबर दैट कि ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, उन सारी चीजों को। क्या अभी क्लास चल रही ना?
So you will come to know कि all these things you will get, all these things you will find. So what I want to say, इस आस्पेक्ट को आप ले सकते हैं, इस आस्पेक्ट को समझा जा सकता है। ऐसे ही एक नॉवेल आई है माउरिस करके, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में आई। माउरिस एक नॉवेल है, वेल नोन नॉवेल है, और किसका है, आपका इनका ई एम फॉस्टर का। ये थीम उसमें भी है, इस तरह की चीजें रही हैं। तो चूंकि मैं इस पहलू पे मैंने केवल ट्रांसजेंडर को ही लिया हुआ है, ट्रांसजेंडर पे मैंने पिछले 4 सालों से काफी ज्यादा, मैं नहीं कहूँगा मैंने काम किया, आप लोगों की ब्लेसिंग से, दुआओं से इस फील्ड में मैं रहा हूँ। मैं इस राइट्स को लेकर के, खासकर मैं ट्रांसजेंडर के राइट्स को, अभी मेरा इस एस्पेक्ट पे नहीं आया हूँ लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल को, ट्रांसजेंडर जिसको थर्ड जेंडर कहा जाता है उस पे। लेकिन जब आप ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, उस थियरी की बात करते हैं, तो उसमें ये सारे शब्द आते हैं, उसमें भी इनके भी चीजों को लेकर के कि अमेरिका में कैसे मूवमेंट चला, और इंडिया में खासकर अभी 2018 में कैसे जो है अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 377 को जो है, जो पहले क्रिमिनलाइज था उसको कैसे डीक्रिमिनलाइज किया। तो रिसर्च का एक हिस्सा है, लेकिन इस पहलू को भी लेकर के हम समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू ड्रामा, जो ड्रामा के कैरेक्टर से या उससे रिलेटेड है, उसको लेकर के मैं आपको बात करना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर प्ले, स्पेशली द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मैंने एक तो मैंने आपको बता दिया कि उसका जो डेट है वो क्या है, 1596 है, 1596 ईस्वी में। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि यह कैसा प्ले है, ट्रेजिक कॉमेडी है। तीसरा चीज सेटिंग कहाँ पर है, वेनिस में है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर क्या है, डिप्टिंग है, मनी लेंडिंग है। और मेरी अपनी नजर में कि शायद सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर जो होना चाहिए वो कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स होना चाहिए। डेप्ट और डेप्ट और मनी लेंडिंग के पीछे जो बताने का मकसद रहा होगा, शायद वो रहा होगा उसको ना उभार पाए हों, या ना कहने की हिम्मत हो कि शेक्सपियर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनकी सिंपैथी थी, उन्होंने इस कैरेक्टर को ऐसा, बट आई थिंक कि मेरी अपनी नजर में ये चीजें रही है जिस हिसाब से उसमें होता है। बाकी आपको ये पता है कि जो प्ले है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन है, हर प्ले में शेक्सपियर के कुछ ना कुछ सीन रही है, जिसमें से एक सीन आपका बॉन्ड सीन है। वो आपको पता ही बॉन्ड सीन कैसे बॉन्ड होता है एंटोनियो के बीच में, शाइला के बीच में, कि तुम अगर पैसा वापस नहीं कर पाते हो समय पर तो मैं 1 पाउंड फ्लैश आपकी बॉडी से ले लूंगा। फिर हमें ये पता होता है कि ये जो सीन है, ट्रायल सीन आती है, ट्रायल सीन जो है बॉन्ड सीन और ट्रायल सीन का रिलेशनशिप है, कि जो भी बॉन्ड हुआ था उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग एंटोनियो समय पे पैसा वापस नहीं ले पाते, तो उनके ऊपर जो अक्यूजेस हैं, जो चार्जेस है, उसके लिए उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे पोर्सिया डिस्गाइज फॉर्म में आती है, और कैसे वो अपनी दलील के माध्यम से, कैसे जो आपने मर्सी सानेट पढ़ा है उसका जिक्र होता है, और कैसे जो है वो सीन आगे बढ़ती है। तो बॉन्ड सीन हो गया, ट्रायल सीन हो गया, या उसी ट्रायल सीन को हम कोर्ट सीन भी कहते हैं। कास्केट सीन है, कास्केट सीन को भी आपको याद होगा कि किस हिसाब से जब पोर्सिया की मैरिज का मामला आता है तो कैसे कई लोग आते हैं, और उनमें से जो है जिस कास्केट में वो रिंग रखा रहता है, उस रिंग को लेकर के वो सही शूटर को चूज करती है, जो किसके अकाउंट में आता है, बैसानियों के अकाउंट में आता है। तो मैं कुछ सीन्स के नाम आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी यू और फेमिलियर, यू नो, आई थिंक कि मुझसे ज्यादा आप इस पे जानते होंगे, आप वाकिफ है। रिंग एपिसोड भी है, रिंग एपिसोड, उसमें कैसे वह उसको रिंग देती है, फिर जाके ट्रायल सीन में या कोर्ट सीन में आपके समझ में आता है कि हाँ ये जो है चीजें होती है। सो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दो सीन्स। एक तो बॉन्ड सीन है, दूसरा कॉस्केट सीन है, तीसरा ट्रायल सीन है, और चौथा आपका रिंग एपिसोड है। ये कुछ सीन्स है। और जहां तक आपको ये पता है कि इसका अपना सोर्स, तो मैंने एक बार एक सोर्स लिखवाया था कि प्ले का एक सोर्स जो है क्रिस्टोफर मार्लोस का जो प्ले है जीव ऑफ माल्टा, वहां से भी लिया गया। वहां पर भी देखिए वर्ड यूज किया गया है जीव, MALTA, माल्टा, माल्टा जगह का नाम है। तो जीव ऑफ माल्टा भी प्ले का सोर्स है। वहां पर भी एम्बिशन थी कि मैं पैसा ज्यादा मेरे पास आ जाए, जो जीव ऑफ माल्टा का जो कैरेक्टर है। ऐसे ही कुछ एम्बिशन, ग्रीड, लालच, ये सब चीजें हम कहाँ पे देखते हैं, जो शाइलाक के कैरेक्टर में दिखाया गया है। तो ये कहा जाता है कि उसका एक सोर्स रहा है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, एंटोनियो मैंने बताया कि वेनिस के बड़े सौदागरों में से रहे, लेकिन वो लिबरल हैं,
क्रिश्चियन हैं और गॉड फादर के रूप में काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी अपनी बहुत सारी शिप है, बड़े बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनकी जहाज गई हुई है बाहर जो है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, समय पे जहाज वापस नहीं आ पाती है और वो पैसा जो है वापस नहीं कर पाते, सारी कहानी आपको पता है। बैसानियों जो है, मैं इन बैसानियों को जहां तक बात आएगी, मैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं मानता हूं, लेकिन एक जरूर है कि यह एक साइड हीरो के रूप में रहे हैं, और ये जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एंटोनियो के ऊपर। और बैसानियो खुद पैसे पैसे का महत्व देते हैं, अगर आप देखेंगे कि शाइलाक को जहां इतना एब्यूज किया गया पैसे के लिए, बैसानियो वहां पैसे को महत्व देते हैं। अगर वो पोर्सिया के साथ शादी करने गए हैं, तो पोर्सिया ऐसा नहीं कि उनका पोर्सिया के प्रति प्रेम ही एक रीजन है, उनकी नजर पोर्सिया के पैसे पर भी है, यह भी हमें बात ध्यान में रखना चाहिए। तो बैसानियो जो है वो एंटोनियो के फ्रेंड है और क्रिश्चियन है, वो भी पैसे को जो है कहीं ना कहीं महत्व देते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, डबल डीलर भी हैं, और उनकी शादी जो है किससे होती है, पोर्सिया से होती है। शाइलाक आते हैं। शाइलाक जो है को विलेन ऑफ द प्ले के रूप में दिखाया गया है। देखिए, अगर कहीं पर हीरो है, प्रोटेगोनिस्ट होगा, सेंट्रल कैरेक्टर होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कैरेक्टर खड़ा करना पड़ेगा जो उस कद का हो। ऐसा नहीं कि आपने बाहुबली मूवी बना दिया, और बाहुबली मूवी बनाने के बाद किसी पतले दुबले आदमी को उसका विलेन, नहीं, जैसा जेस्चर पोस्चर बाहुबली का होगा, जो कद काठी होगी, उसी के पैरेलल वहां पर। अगर एंटोनियो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस की बातें आप कर रहे हैं, तो उसी के पैरेलल एक दूसरे बिजनेसमैन को वहां खड़ा किया गया। अगर एंटोनियो क्रिश्चियन है, अगर कम्युनल फीलिंग ली गई, तो उसी के पैरेलल जीव को वहां दिखाया गया कि वो जीव है। अगर एंटोनियो जो है पैसा लोगों को ऐसे फ्री में देते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई वो पैसा लोगों को उधार देते हैं, हैवी इंटरेस्ट पर देते हैं। तो जब आप उसके पैरेलल, जिसके कंट्रास्ट में, जिसके अपोजिट में आपको उसको दिखाना है, उसके पैरेलल जब करेंगे, तब चीजें आएंगी, तब चीजें आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह की। तो शेक्सपियर, तो कैरेक्टराइजेशन में शेक्सपियर का कोई जवाब ही नहीं था। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी खास करके जो है, कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन प्लॉट, कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लॉट की तुलना। बाकी आपको ये पता है कि जेसिका उनकी बेटी है। जेसिका कैसे जो है फादर के सारे जो भी पैसा वैसा उन्होंने इकट्ठा किया, कैसे लेकर के इलोप कर जाती है लॉरेंजो के साथ। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। तो उसको लेकर के उनको कितना दुख होता है, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम। लॉरेंजो जो कि एक सर्वेंट है, उसमें जो है लॉरेंजो है, सर्वेंट है, और पर्सनल मेड है पोर्सिया के। देर इज स्टीफेनो, स्टीफेनो भी जो है पर्सनल मेड है, किसके, जो है पोर्सिया के। तो अब देखिए, अगर पोर्सिया के पास नौकर हैं दो दो, तो यह इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्सिया स्ट्रांग थी। और जो फेमिनिज्म की तमाम बातें होती हैं कि महिला सशक्तिकरण, ऐसा करो वैसा करो, अगर जो है इकोनॉमिक रूप से महिलाएं सशक्त हैं, तो ऑलरेडी वे सशक्त हो जाएंगी। तो एजुकेशन और एम्पावरमेंट, सॉरी, इकोनॉमी, ये दो चीज है जो शेक्सपियर ने बहुत अच्छे ढंग से इस कैरेक्टर के साथ दिखाया है। अगर सोचिए कि पोर्सिया एजुकेटेड ना होती, तो वह वकील का रूप कैसे धारण करती, कैसी इतनी दलील देती। तो शेक्सपियर इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि अगर आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो आप कोई भी नियम कानून बनाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी समाज की महिला को या कुछ भी करना है, तो दो चीजें बहुत जरूरी है, एजुकेशन और इकोनॉमी। एजुकेशन और इकोनॉमी, अगर आप ये दो चीजें करते हैं उनके लिए, तो दे विल बी स्ट्रॉन्ग, दे विल बी मोर पावरफुल। और यह पोर्सिया के कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। एक ट्यूबाल एक कैरेक्टर करके हैं, जो कि वो भी जीव हैं, और उन्होंने ही जो है क्या किया था, शाइलाक को इस क्रूएल बॉन्ड के लिए सजेस्ट किया था। देयर इज अ कैरेक्टर ट्यूबल, TUBAL। उसके अलावा सर जूनियर लांस लॉर्ड गोब्बो हैं, वो रस्टिक क्लाउंस हैं। सर जूनियर लांस लॉर्ड गोब्बो रस्टिक क्लाउंस है। तो ये दो कैरेक्टर ट्यूबाल, और इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने ही जो क्लाउन है, उन्होंने ही जो लॉरेंजो और जेसिका के इलोप का पूरा प्लाट तैयार किया, या उनको ले गए या उनको भगाए। कुछ और भी कैरेक्टर है, सालानियो है, साइलारिनो है, ग्रासियानो है, ये एंटोनियो और बैसानियो के फ्रेंड्स हैं। सो व्हाट आई वांट टू नो कि यू हैव गॉन विद दीज कैरेक्टर्स। इसके अलावा कुछ लोग आए थे पोर्सिया से शादी करने के लिए, उसमें प्रिंस ऑफ मोरक्को है, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन है, प्रिंस ऑफ फ्रांस है, प्रिंस ऑफ पॉन्टीन है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारे के सारे लोग आए थे
किससे शादी करने के लिए? पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो ये जो प्रिंस आए थे मोरक्को के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, पोनेंटाइन के, सो यू विल कम टू नो ये सारे लोग आए थे, इन्होंने अपना काम किया, लेकिन जो अल्टीमेटली बाजी किसके हाथ में लगी? वैशालियों के हाथ में लगी। सो मेरे पास जो भी था या जो भी मेरी अपनी समझ थी उस हिसाब से मैंने प्ले को डील किया, एंड आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। नाउ अल्टीमेटली जस्ट आई वांट टू से कि if you want to leave any comment or so you can just say, and we were very lucky, we were very fortunate कि नाउ इस समय हमारे पास प्रॉपर वे में सिग्नल काम किया, चूंकि कल शाम को मैं बहुत परेशान था और आप यकीन मानेंगे कि मैं 6 बजे, क्या 6 बजने 2 मिनट था, तभी से मैं लगाना शुरू किया था, और उस समय मेरे यहाँ वही नहीं चल पा रहा था। उसके बाद कंडीशन ये हो गई कि हम लोग 6:10, 6:15, 6:20 तक बहुत सारी कोशिशें करते रहे, लेकिन सफल नहीं, चूंकि जब एक आदमी किसी चीज को पढ़ा रहता है और माइंड मेकअप किया रहता है कि मैं इससे वहां तक दे दूं, पहुंचा दूं, तो उसको भी सुकून मिलता है कि हाँ उसने अपना काम कर दिया। दूसरा चीज ये रहता है कि जिस लेवल पे आदमी पढ़ करके जो एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है, वो 2 दिन बाद उस बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाता है। दिस इज वाई आई एम हियर, एंड दिस इज वाई आई जस्ट टोल्ड यू कि what ultimately the play is and how you can just go with this play and in what way you have to understand. जस्ट आई वांट टू से कि अगर आप में से किसी को कोई फीडबैक देना हो तो यू कैन जस्ट से, और अगर हमारे पास समय होगा तो मैं दूसरे प्ले को ही डील करना चाहूंगा। इस सेशन के बाद आई विल गिव यू 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट के बाद मैं दोबारा होऊंगा। नहीं, जीव 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 जो है कोई कास्ट नहीं है, एक कम्युनिटी है, यहूदी जिसको हम कहते हैं। नहीं, उन्हीं को ही, यहूद, हाँ यहूदियों को ही हम जीव कहते हैं जी। हु इज द फादर ऑफ? या नहीं, अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग कम्युनिटी है। उसमें जो देखिए, जो जो कम्युनिटी की फीलिंग्स है, पार्टिकुलरली कम्युनिटी की फीलिंग्स जो है, ये जैसे जैसे रिलीजन आया उस हिसाब से कम्युनिटी की फीलिंग्स बदलती गई। यू विल कम टू नो कि जब कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिटी में तो एक चीज ये होगा कि पहले दुनिया में तो कोई कम्युनिटी नहीं रही होगी। जैसे अगर एक विश्वास होता है कि श्रद्धा और मनु अर्लीस्ट फोर फादर्स, अगर मैं मान लूं, या एडम और ईव अर्लीस्ट फोर फादर्स रहे होंगे, तो दुनिया के जितने इंसान, सारे इंसान उन्हीं के हैं। और निदा फाजली ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, अभी मैं मिस कर रहा हूँ, कल लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है रूपरेखा वर्मा, वो उन्होंने कल फेसबुक पे अपने पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि एक समय रहा होगा जब इंसानियत रही होगी, जब एडम और ईव की संतानों में कोई जो है कम्युनिटी फीलिंग नहीं रही होगी, एक समय ऐसा रहा होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है सारी चीजें बदलती गई। तो जैसे जैसे जो है रिलीजन आया, जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं कि धार्मिक किताबें लोगों के हाथ में लगी, तो उन उसके मानने वालों ने कहा कि मैं इस कम्युनिटी के, उसके मानने वालों ने कहा मैं इस कम्युनिटी के। लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सबकी सबकी जड़ें कहाँ पर है? सबकी जड़ें जाकर के वहीं पर ही ठहरती हैं कि एडम और ईव या श्रद्धा और मनु, विचार अलग हो सकते हैं मानने के, बट दे ऑल बिलीव इन गॉड, दे ऑल बिलीव इन दैट वे। लेकिन बाद में इतनी समस्याएं, कलर फीलिंग, रेशियल फीलिंग, जेंडर स्टडीज, कम्युनल फीलिंग इंसानों में उभरती चली गई। जब एक माँ बाप रहे होंगे तब तो जो है सबको, सारे लोगों को माँ बाप ही लगते रहे होंगे ना, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो सारी चीजें होती है, जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है। आप अपने घरों में देखिए या मैं अपने घरों में देखूं कि परिवार जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर किसी माँ बाप के 4 भाई, एक बहन है, तो उन उन दोनों में, चारों में एक अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही उनकी मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर उनका अटैचमेंट अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा होता है। और वे नैतिकता की बातें अपने बच्चों में तो करेंगे, लेकिन अपने अपने भाइयों के साथ वो नैतिकता की बातें नहीं हो पाती है। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है, ये इंसान की फितरत है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा चलता रहा है। नहीं, नहीं एक्चुअली आई वांट टू से, लेकिन वो जो चीजें मैं भी मिस कर रहा हूँ कि रूपरेखा वर्मा ने वो पोस्ट किया हुआ था, और मैं वो लाइन को मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने तो अभी उसका साथ मैंने स्क्रीन शॉट लिया होगा, दैट इज इन माई मोबाइल, वो पड़ा होगा।
अच्छी बात, उन्होंने बहुत प्यारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन एग्जैक्टली उनका जो सेंस था वो यही था, लेकिन वो लाइन मिस कर रहा। या यू कैन स्पीक, यू कैन। या मुनीश्वर जी, जी 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 मुनीश्वर जी। हाँ, कुछ ऐसी ही बातें जो है उन्होंने जो है उन सारी इविल्स को लेकर के जो आज हम इंसानों ने तैयार की है, उन सारी इविल्स पर निदा फाजली ने अटैक किया है, या उस पर भी जो है उनका वो है नहीं कि जो पहले वो उसमें कहते हैं अपने की अपना गम लेने कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। तो गम तो इतना सारा है, पहले यही सजा ले, फिर उसके बाद और जगह बातें कहा जाए। तो दीज आर द थिंग। तो आई थिंक कि मुझे जो है कंक्लूड करना चाहिए। अगर आप लोग तैयार होंगे, या इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी, तो मैं चाहता था कि 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके साथ मिलूं, अगर टाइम हो, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, या अगर कॉलेज खुला हो, तब तो कोई बात नहीं। यू डोंट हैव टाइम। अच्छा ठीक है, यू डोंट, हाँ मैं समझ रहा था कॉलेज खुला होगा, कॉलेज जिसका खुला होगा तो मुश्किल है। एंड व्हाट्स योर प्लान इन द इवनिंग? कैन वी बी ऑनलाइन एट 5:30 या 5:40 पर, आज 5:40 पर शाम को? अच्छा 6 बजे ही, ठीक है ठीक है। तो नहीं, मैं पहले करना चाहता, मैं पहले करना चाहता था, मैं पहले का मतलब, हाँ पहले का मतलब ये कि थोड़ा सा एक आध दो बड़ी क्लासें हो जाए। नहीं तो 4 बजे के करीब, 4 बजे के करीब। नहीं, ऐसा कि कोई सजेशन नहीं, बस शाम शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जी। कोई सजेशन नहीं, शाम को 6 बजे। जी मुनीश्वर भाई, यू आर सेइंग समथिंग जी। हाँ 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 बिल्कुल। जी जी, मैं देखता हूँ अक्सर। जी जी जी। इवनिंग में मैंने 6 बजे रखा हुआ है, टाइमिंग आपको 6 बजे। हाँ वो पर, नहीं वो कभी चेंज नहीं, इधर आप देखेंगे जब भी रहा है थोड़ा सा। जब मैं बहुत ज्यादा कभी, जैसे कभी यूनिवर्सिटी चला गया, या कभी मैं कॉलेज से अपने बहुत देर में आया, तो ये ना हो कि मैं कोई क्लास स्किप करूं, इस वजह से मैंने कभी उसको 7 बजे ले लिया है। अदरवाइज उसका जो टाइमिंग है वो फिक्स है, 6 बजे ही शुरू किया जाता है, 6:05, 6:08 इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे पे हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादातर का यही रहा। नहीं नहीं, उस पे जी जी। जी जी, उसमें जो है ज्यादातर लोगों को टाइम रहता है, ज्यादातर लोग आते हैं, और फिर इधर मॉर्निंग टाइम में हर आदमी के पास तैयारी का, फैमिली, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाना, ऑल दिस थिंग वी फाइंड। तो होप वी विल मीट इन द इन मॉर्निंग, और सॉरी शाम को 6 बजे मिलेंगे। और किसी को क्लास के रिगार्डिंग और कोई बात कहनी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों का पहला टेस्ट है, जिसको मैं जो है क्या करूंगा कि मैं जो है आपका जब शाम को मैं क्लास जब ले लूंगा, उसके बाद मैं वो पोस्ट करूंगा, उसके पहले नहीं। मैं चाहता हूँ आप उसके पहले अपना तैयारी करिए, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का आज पहला टेस्ट होगा, और आपको मैं समय दूंगा 9:30 बजे के बाद, 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में आपको करने का रहेगा। ठीक। ओके ओके, वी विल मीट। ओके, वी विल मीट इन द,